محترم سامعین اور ناظرین، خالد خان کے آداب قبول کیجیے گا۔ آج آپ سے مخاطب ہوں، اور مخاطب ہونا بہت ضروری بن رہا تھا کہ جو وبا ہمارے ملک میں آئی ہے اور جس کا حملہ ہوا ہے، وہ ایک حقیقت کا روپ دار کے ہمارے سامنے آئی ہیں، اور ہم تمام تر جو سازشی نظریات ہیں اور تمام تر جو افواہیں ہیں اس کو ایک طرف رکھ کے ہمیں اب اس کو ایک حقیقت سمجھنا ہوگا، اور بجائے اس بحث میں پڑھنے کے کہ یہ وبا اللہ کی طرف سے آئی ہے یا یہ کوئی انسانی شرارت ہے، اور ان تمام چیزوں سے نکل کے ہم نے حد المقدور جو ہے نا اپنی حفاظت اور اپنے پیاروں کی تحفظ کی جو ہے نا وہ طریقہ کار ہم نے ضرور اپنانا ہوگا۔ اس کے لیے تو جو معالجین اور ماہرین اور سائنسدان جو ابھی تک ہمیں بتا رہے ہیں، ان جو سٹینڈرڈ پروسیجرز ہے، وہ جو طریقہ کار ہے، جو حفاظتی تدابیر ہے، اس کو اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے، اور انتہائی اہم بات ہے کہ بلا ضرورت آپ گھروں سے باہر نہ جائیں، اور انتہائی شدید ضرورت کے تحت اگر گھروں سے جانا ہو تو ہینڈ سینیٹائزر ہوا، ماسک اور گلوز کا استعمال ہوا، اور اس کے بعد پوری طور پر کام کاج کر کے گھر آنا۔ جو جوتے آپ نے پہنے ہوئے ہیں اس کو گھر سے کے ہاتھ سے باہر رکھنا، بات لینا، وہ جو کپڑے آپ باہر سے پہن کے آ رہے ہیں اس کو واشنگ مشین میں ڈالنا، بات کے بعد نیا جوڑا پہننا، اور یہ سارے احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پہ۔ پھر آپ نے اپنی امیون سسٹم کو ڈیولپ کرنا ہے، آپ نے برف سے، ٹھنڈے مشروبات سے، پانی سے، ان چیزوں سے آپ نے پرہیز برتنی ہے، اور آپ نے سبزیاں اور پھل موسم کے جو ہے وہ زیادہ لینے ہیں، اور خصوصی طور پر وٹامن سی جن پھلوں میں اور سبزیوں میں ہے اس کا استعمال کرنا ہے۔ لیکن میرے ایک جاننے والے ہیں، میرے کلاس فیلو ہیں، میرے بچپن کے ساتھی ہیں، ایک معتبر انسان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، خود انجینئر ہیں، ان کی بیگم پروفیشنل ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ MBBS ڈاکٹر ہے۔ تو بدقسمتی سے میرے اس دوست کو، ان کی وائف کو، مسز کو، اور ان کے 2 جوان العمر بچوں کو یہ وبا لاحق ہوئی تھی، اور ان کو اللہ نے شفا دی، وہ صحت یاب ہو گئے الحمدللہ۔ بہت ضروری یہ بات بن رہی تھی کہ ان سے گفتگو کی جائے، اور وہ تمام حقائق سامنے لے آیا جائے کہ کیا احتیاطی تدابیر انہوں نے کی تھی، اور پھر بھی وبا ان تک آ گئی۔ تو احتیاطی تدابیر میں جہاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کا خیال رکھا جائے۔ بیماری جب آتی ہے تو کس طرح پھر اسے نبرد آزما ہونا ہے، کھانے پینے کے حوالے سے، دوا دارو کے حوالے سے، احتیاطی تدابیر کے حوالے سے، اور وہ کون سی چیز تھی، وہ ایک خاص نسخہ تھا جو انہوں نے استعمال کیا اور ان کو شفا نصیب ہوئی۔ تو آئیے ان دوست سے ٹیلیفون کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں، ان کا تعارف اور سارے احوال جو ہے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ محترم، آپ کو خالد خان یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب، سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنا تعارف کیجئے گا ہمارے دیکھنے والوں اور سننے والوں کے ساتھ۔ شکریہ خالد خان صاحب، بڑی مہربانی، آپ نے مجھے اپنے چینل میں مدعو کیا۔ میرا نام امین الرحمان ہے، میں آٹوموبائل پروفیشنل ہوں، اور میرا کام جو ہے ورکشاپ ڈیزائننگ ہے، اور گیریج اکوپمنٹس کی ڈیزائننگ اور مینوفیکچرنگ میں میرا جو ہے ایک رول ہے، اور ایک چائنیز بہت بڑی کمپنی کے ساتھ میں ایز اے چیف ٹیکنیکل ڈیزائنر کام کر رہا ہوں۔ اس وقت میں پاکستان میں ہوں اپنی فیملی کے ساتھ پشاور میں۔ جناب، بدقسمتی سے آپ کو اور آپ کی بیگم صاحبہ کو، جو پروفیشنل ڈاکٹر ہے، اور آپ کے 2 بچوں کو، بیٹی اور بیٹے کو، جوان العمر بچوں کو، بدقسمتی سے یہ جو وبا آئی ہوئی ہے اس کا حملہ ہوا تھا، اور آپ کے گھر تک یہ جراثیم پہنچ گئی تھی، اور 4 لوگ آپ بیمار ہو گئے تھے۔ یہ اطلاع میرے پاس موصول ہوئی ہے، تو کیا آپ اس کی تصدیق کریں گے؟ واقعی کچھ ایسا ہوا تھا؟ آپ لوگ بیمار پڑ گئے تھے؟ بالکل خالد خان صاحب، ہم نے چونکہ جب سے یہ وبا آیا تھا تو اس وقت تو 4-5 مہینے پہلے میں چائنا سے آیا تھا، تو اس کے بعد یہ وبا وہاں شروع ہوا تھا۔ تو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھا، کیونکہ سب سے پہلے تباہی جو ہے چائنا میں اس نے مچائی تھی جی۔ اس کے بعد جو ہے باقی ملک میں ٹرانسفر ہو گیا تھا، لیکن میرے لیے یہ جو ہے سینٹر پوائنٹ اس لیے تھا کہ وبا وہاں سے شروع ہوا تھا، اور وہیں سے اس کے جو SOPs اور جو کیئر اور ایڈوائز جو ہے وہاں سے ایشو ہو رہے تھے، کیونکہ میرا تعلق چائنیز فرینڈ کے ساتھ بہت کلوز تھا،
تو ان کے فیملیز کے ساتھ اور ان کے ایکسپرٹس کے ساتھ اور مختلف جو ہمارے فیلڈ کے جو لوگ ہیں جو عام آدمی نہیں ہیں, ایک اچھے لیول پہ کام کرنے والے ہیں, ان کی باتوں میں بالکل ایک اتھینٹسٹی ہوتی ہے اور حقیقت ہوتا ہے. ان کے ساتھ میں نے اپنے آپ کو ٹائی اپ رکھا. میں نے حد الامکان جو ہے آپ اس دور کی بات کر رہے ہیں کہ جب کوئی بیماری آئی نہیں تھی, احتیاطاً آپ رابطے میں تھے. بالکل, میں احتیاطاً رابطے میں تھا. اور جب ہمیں احساس ہوا کہ پاکستان میں بیماری آ گئی ہے تو اس کے ساتھ ہی میں نے فوراً جو ہے اپنے آپ کو احتیاطی تدابیر نہیں اپنائی تھی. میں نے جس طرح احتیاطی تدابیر اختیار کی تھی, میرے خیال میں میرے خاندان میں یا دوستوں میں کسی نے نہیں کی ہوگی, کیونکہ میں خود ایک پروفیشنل بندہ ہوں. میری وائف پروفیشنل ڈاکٹر ہے, میرے بچے تعلیم یافتہ ہیں, ہمارا جو رہن سہن ہے بڑا سسٹمیٹک ہے. لیکن اس کے باوجود بھی, احتیاط کے باوجود بھی ہمیں جو ہے بیماری لگ گئی. اور بس اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کرم کیا کہ آپ کے جو 2 بچے بیمار ہوئے تھے ان کی عمریں کیا ہے؟ میری جو بڑی بیٹی ہے ملائکہ 16 سال کی ہے اور بیٹا جو ہے 13 سال کا ہے ایمان. یہ دونوں کو جو ہے میرے بعد, کیونکہ مجھے پہلے تکلیف شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہے میری بیٹی کو شروع ہوئی ہے, پھر اس کے بعد بیٹے کو شروع ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جو احتیاطی تدابیر آپ نے اختیار کی ہوئی تھی, ذرا اس کی وضاحت کیجیے تاکہ سمجھ آ جائے کہ کہیں پہ غلطی ہوئی ہے. ہاں, احتیاطی تدابیر میں یہ تھا کہ فوراً جو ہے یہ کوارنٹین کا جو ایڈوائز آیا تھا چائنا سے. بیماری سے قبل آپ کون سے احتیاطی تدابیر کر رہے تھے؟ بیماری سے قبل تو کوئی احتیاطی تدابیر نہیں تھی, کیونکہ یہاں پر خطرہ بھی نہیں تھا اور یہاں پر کوئی اس کے وجود کا کوئی انڈیکیشن نہیں تھا, تو ہم تو نارمل لائف گزار رہے تھے. لیکن جو ہی انڈیکیشن آئی تو میرے سے زیادہ میرے جو فرینڈ تھے وہاں چائنا میں وہ الرٹ ہو گئے میرے لیے, اور انہوں نے میرے ساتھ صبح دوپہر اور شام کو رابطے شروع کیے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے. باقاعدہ جو سٹینڈرڈ وہاں پر گورنمنٹ اپلائی کرتا تھا, لوگ اپلائی کرتے تھے, اس کا فائدہ وہ لوگ دیکھ رہے تھے, تو وہ باقاعدہ ورڈ بائی ورڈ میرے کو ٹرانسفر اور ٹرانسلیٹ کر رہے تھے اور میں اس کو فالو کر رہا تھا. یعنی آپ کے بچے اور وائف جو ہے وہ گھر تک محدود تھے اور بہت ہی ضرورت آپ باہر نکلتے تھے اور آپ سینیٹائزر اور گلوز اور ماسک اور سب چیزیں یوز کرتے تھے؟ بالکل 100% میں احتیاط کرتا تھا. جو اسٹینڈرڈ یعنی اسٹینڈرڈ سے ہٹ کے باقی جو ہے انسان کچھ کر نہیں سکتا. یہ بد احتیاطی آپ کے خیال میں کہاں ہوئی تھی؟ آپ کسی تقریب میں گئے تھے, دوستوں کے پاس گئے تھے؟ میں اصل میں میرے جو کزن کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کے جنازے پہ ہم نے جانا تھا, ضروری تھا, تو ہم لوگ گئے اور اس کے آنے کے بعد جو ہے ہمیں جو ہے سمٹم ہمارے زیادہ ہو گئے اور یہ بیماری گھر میں مسلسل پھیلنے لگی. اچھا امین صاحب, اس دوران آپ کی کزن کی ڈیتھ ہو گئی اور آپ جنازے اور تدفین میں آپ نے شرکت کی, جو ایک مجبوری تھی, تو وہاں سے واپسی پہ آپ کو احساس ہوا کہ آپ کو یہ جراثیم لگ چکے ہیں, تو ذرا پھر سنائیے کہ آپ کو کب اور کیسے محسوس ہوا؟ اس کے بعد جو ہے, کیونکہ مجھے تو پہلے سے تھوڑا سا جو ہے سانس کی تکلیف شروع تھی, لیکن نہ مجھے بخار تھا نہ مجھے کھانسی تھی. سانس میں یہ تھا کہ کوئی تھوڑی سی ابسٹرکشن فیل کرتا تھا میں گلے میں, اور وسلنگ ساؤنڈ آتا تھا جب میں سانس لیتا تھا, تو کبھی مجھے محسوس ہوتا تھا, کبھی ساتھ بیٹھنے والے کو بھی محسوس ہو رہا تھا کہ میں جب سانس لیتا ہوں تو ایک سیٹی کی جیسے آواز نکلتی ہے میرے گلے سے. وہ جو ہے, لیکن ہم نے اس کو لائٹ لیا کیونکہ باقی سمٹم اس طرح نہیں تھے جس طرح اس کے جو ہے اس بیماری کے تھے بیان کیے جاتے ہیں, تو وہ اس طرح نہیں تھے. لیکن یہ ہم جب جنازے سے واپس آئے تو اچھا, جنازے کے بعد تو ہم واپس آ گئے, لیکن 2-3 دن کے بعد جو ہے سوئم تھا, 2 دن کے بعد تیسرے دن جس طرح ہمارے ہاں کل پہ ہم لوگ گئے, اور کل کے دوران ہی میری وائف کو جو ہے بخار شروع ہو گیا اور وہاں پر اس کو شیورنگ شروع ہو گئی. پھر ہم گھر واپس آ گئے اور پھر ہم نے جو ہے ہائی سٹینڈرڈ جو ہے کوارنٹین شروع کیا. وائف کو بالکل الگ کمرے تک محدود رکھا, بچوں کو الگ رکھا. لیکن اس دوران جو ہے اس سے پہلے میرے بچوں کو جو مائلڈ وہ ہو گیا تھا. ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمیں اٹیک جو ہے یہ جنازے میں ہوا یا میرے سے میرے بچوں میں ٹرانسفر ہوا, بچوں سے پھر میری وائف میں ٹرانسفر ہوا. جب بہت ہی ضرورت باہر نکلتے تھے, واپس آتے تھے, تو ماسک, گلوز اور سینیٹائزر تو یوز کرتے تھے, لیکن آپ جوتے کپڑے وغیرہ باہر اتارتے تھے, آپ کوئی بات لیتے تھے؟
बात तो मैं अगर बोलूं कि मैंने बात दिया तो वो गलत होगा, क्योंकि बाकी जो है मैं बाकायदा हाथ धोना, जूते बाहर निकालना, और जो है जो 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 और वो जिस तरह हमें कपड़े भी तब्दील करते थे आप? नहीं, कपड़े मैंने कभी तब्दील नहीं किए। लेकिन मैं एहतियात करता था, अपने आप को झाड़ता था, हाथ धोना, और बाकायदा मुंह धोना, पैर धोना अगर मैंने चप्पल पहने हुए बाहर गया हूँ, तो ये सब एहतियात हमने किए। ठीक, लेकिन तो इसके उसमें बावजूद तो भी अमीन साहब एहतियाती तदाबीर में ये भी बताया जा रहा है कि आप शूज घर के अंदर नहीं लाएंगे, जो कपड़े आप पहन के गए हैं उसको आप धोने के लिए एक तरफ रखेंगे और आप प्रॉपर बात लेके नया जोड़ा जो है उसको लेके धुला हुआ। असल में ये मैंने सुना था, लेकिन हमारे लिए पॉसिबल इसलिए नहीं था कि हम जो जिस फ्लैट में रहते हैं उससे पॉसिबल नहीं है कि बाहर आप कपड़े चेंज करें या घर में आए, और अगर आप घर में इन हो गए हैं तो बस दैट इज इनफ फॉर एनी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो अपार्टमेंट्स की जिंदगी होती है उसमें तो ये एक दुश्वारी होती है, लेकिन इतने एहतियात के बावजूद मैं ये तलाश करना चाह रहा हूँ कि कहीं पे तो बद एहतियाती हुई है कि जरासीम घर तक पहुंचे हैं। तो जरा वो मैं वजाहत चाह रहा था, मुझे अंदाजा हुआ कि ये जहाँ जहाँ कुछ थोड़ी बद एहतियाती हुई है तो वहां से ये सिलसिला शुरू है, और सबसे पहले शिकायत आपको हुई थी, उसके बाद फिर बच्चों को और भाभी को। जी हाँ, तो बच्चों को और भाभी को जो हुई उनका तो रिकवरी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी रिकवरी फास्ट हुई, लेकिन वाइफ को काफी मुश्किलात का सामना हुआ। बुखार तेज था, खांसी बड़ी तेज थी, और जो है कमजोरी काफी ज्यादा थी हर लिहाज से। सिर्फ उनकी उम्र ज्यादा है या उनको शुगर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या इस तरह की कोई बीमारी? कुछ भी ऐसी कोई बीमारी नहीं है उनको। उम्र भी तकरीबन 50 प्लस है, 51 या 52, तो उम्र भी एवरेज एज है। फिजिकली फिट है, कोई ऐसी शिकायत नहीं है किसी क्रिटिकल बीमारी की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं थी। लेकिन सिर्फ ये है कि उन्होंने बच्चों के साथ कोई जब बच्चों को ये सिम्टम शुरू हो गए तो बच्चों के साथ कोई फासला नहीं रखा, उनको क्वेश्चन किया, हर वक्त गोद में बिठाया रखा, उनका ख्याल रखा। तो मेरे ख्याल में उस वजह से इसकी जो इनहेलेशन है तो उनकी एग्जर्शन भी होती थी कि 2 बच्चे और आप बीमार थे, आप लोगों की देखभाल, और फिर माँ और बीवी होने के नाते, मशरकी बीवी होने के नाते उन पे जो नफ्सियाती प्रेशर रहा होगा, तो उसकी वजह से शायद हो सकता है। लेकिन हम 6 बंदों में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट किया मेरी वाइफ को किया। अच्छा जनाब, खाने पीने में क्या एहतियात इस दौरान आप कर चुके हैं? खाने पीने में हम लोग ये जब से बीमारी हमें शुरू हुई और सिम्टम आने शुरू हो गए तो हमने ज्यादा जो है सब्जी और फ्रूट्स को तवज्जो दी, और ठंडी चीजों से मुकम्मल तौर पे जो है परहेज किया। ठंडे पानी से, आइसक्रीम वगैरह से या बर्फ से बिल्कुल हमने अपने लिए जहर समझा, बिल्कुल हमने टच भी नहीं किया, ना हमने ना बच्चों ने। सब्जियों और फलों में कोई खास सब्जी या फल या जितनी भी है सब आप इस्तेमाल? सब्जियां तो जितनी भी सब्जियां जो अवेलेबल थी हम यूज करते थे, लेकिन ज्यादा जिसमें विटामिन सी का मिकदार ज्यादा इंडिकेट करता है वो सब्जी को हमने ज्यादा प्रेफरेंस दिया। और फलों में भी जिन फलों में विटामिन सी ज्यादा है उनका इस्तेमाल भी ज्यादा किया? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है, क्योंकि विटामिन सी का जो रिकमेंडेशन थी वो सबसे टॉप पे थी। और आपने ठंडे पानी से, बर्फ से और आइसक्रीम से बिल्कुल रखा? बिल्कुल। अच्छा जनाब, आजकल तो बड़ी शदीद गर्मी भी चल रही है ना पेशावर में, तो एयर कंडीशन वगैरह आप इस्तेमाल करते थे या पंखी के नीचे गुजारा करते? उस वक्त जिस वक्त हमें ये अटैक हुआ था उस वक्त मिड रमजान था, बल्कि मेरे को जो हुआ था और बच्चों को वो अर्ली रमजान में फर्स्ट वीक में हुआ था, और वाइफ को मिड रमजान में ज्यादा जो है सीवियर हुआ। तो उस वक्त हमें एसी की जरूरत नहीं थी। हमारा जो है वैसे आम लोगों के लिए आजकल के दिनों में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उनको एयर कंडीशन से दूर रहना चाहिए? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है ये भी कहा जा रहा है कि एयर कंडीशन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो आप वही अभी डॉक्टर जो है ज्यादा सजेस्ट कर सकता है, मैं इस पे कोई कमेंट्स नहीं दे सकता हूँ। लेकिन यूजुअली इसका जो बुखार है वो शिवरिंग के साथ होता है, यानी सर्दी महसूस होती है, जैसे मलेरिया में होता है। ठीक, जैसे मलेरिया में होता है, तो उसके लिए तो मेरे ख्याल में पंखा भी जो है हम लोग बंद करते थे, तो एसी तो बड़ी बात है कि आप यूज करेंगे। ठीक, तो मरीज के लिए डेफिनेटली एसी की जो है जरूरत उसकी जो है मर्जी के मुताबिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि इस दौरान आपके अपने डॉक्टर से भी मुआलिज से
स्पेशलिस्ट भी कोई राबिता रहा था, कोई दवा दारू आप वो भी इस्तेमाल कर रहे थे कि नहीं? बिल्कुल, हमारे वाइफ तो डॉक्टर है, लेकिन उसने अपने प्रोफेसर के साथ, जो उनका उस्ताद है, उनके साथ मुसलसल रब्ता रखा और उनसे एडवाइजेज लिए। हम जो टेस्ट करते थे ब्लड के, यूरिन के, जो बॉडी जो भी रिक्वायर्ड टेस्ट थे, हम करके उनके साथ कंसल्ट करते थे। तो उन्होंने तो साफ कह दिया था, और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है कि अभी तक कि वायरल इन्फेक्शन के लिए कोई दवाई नहीं है, लेकिन शिवरिंग के लिए हम दवाई जो है यूज़ करते थे। और खांसी के लिए खांसी का सिरप और विटामिन सी के टैबलेट्स और मल्टीविटामिन, ये हम रेगुलर जो है उसने एडवाइस किए। तो हमने पूरे कोर्सेज जिस तरह उन्होंने एडवाइस किए, तकरीबन 10 दिन का कोर्स था, तो सब मैंने और वाइफ ने किए। बुखार को काबू में करने के लिए कुछ पैरासिटामोल और पैरासिटामोल, मल्टीविटामिन और मल्टीविटामिन बच्चों ने तो यूज नहीं किया, क्योंकि बच्चे फ्रूट शौक से खाते थे, तो उनको जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इसको हमने फिर जो लेकिन आप लोगों के लिए पैरासिटामोल, मल्टीविटामिन और खांसी का शरबत कौन सा आप यूज करते थे? खांसी के शरबत मुख्तलिफ उन्होंने एडवाइस किए थे, मुख्तलिफ फार्मूलेशन थी। उन्होंने ये भी बोला था कि आप ये तीनों ट्राई करने हैं, जो आपको सूट करे वो। तो एक हमें जो है हाइड्रोलिन डीएम के नाम से है, और एक दूसरा नाम है, वो मैं आपको बाद में। चलिए ठीक है, लेकिन मकसद ये है कि मुआलिज से राबिता रखना होगा और मुआलिज की हिदायत के मुताबिक आपने दवाई लेनी होगी। बिल्कुल, बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वबाई बीमारी का एक बात है कि मुख्तलिफ लोगों में इसके सिम्टम मुख्तलिफ हैं। इसकी इंटेंसिटी, इसकी जो ताकत है बीमारी का, मुख्तलिफ है और अलामात भी मुख्तलिफ है, भी मुख्तलिफ है। तो इसलिए डॉक्टर की कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। ये जो वबाई सूरत हाल है, इसमें एहतियात बहुत जरूरी है, और जो माहिरीन कह रहे हैं उसके मुताबिक, लेकिन फिर भी इसके कहीं न कहीं से चांसेस है कि इस बीमारी का अटैक हो सकता है। अटैक होने के बाद आपने खाने पीने के हवाले से, मुआलिज के हवाले से राबिता करने की और जो चीजें हैं वो आपने बता दी और अहबाब ने सुन भी ली। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग से कबल आपने सना मक्की के इस्तेमाल की बात की, जिसपे मेरा रद्द अमल शदीद था, क्योंकि वो डॉक्टर साहब जो इंग्लैंड वाले हैं उनकी वीडियोस लोगों ने भी देखी हैं, मैंने भी देखी है, और सना मक्की बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया है, उनको अपाका भी नहीं हुआ है और उनको डायरिया और दीगर शिकायतें भी हुई है। तो आप चूंकि ये दावा कर रहे हैं कि 4 बंदे अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हो गए हैं सना मक्की से, और आपका ये कहना था अमीन साहब के सना मक्की को जिस तरह इस्तेमाल करना चाहिए उस तरह लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और आप वो तरतीब और तरीका बताना चाह रहे थे। तो अब मैं बराह रास्त, मेरी दिलचस्पी है, मैं खामोशी के साथ आपको सुनूंगा और आप सुकून से बताइएगा कि सना मक्की को किस तरह इस्तेमाल किया जाए। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात है। बाज़ लोग जो है सना मक्की को बाज़ लोगों ने इस्तेमाल किया, लेकिन उनको उसका जो तरीका है वो मेरे ख्याल में गलत, बनाने का तरीका गलत, या इस्तेमाल का तरीका गलत, या डोजेज जो है उसमें उन्होंने बेहतियाती की। और क्योंकि बेसिकली सना मक्की हकीम लोग जो है कॉन्स्टिपेशन के लिए और कब्ज़ के लिए ये इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसका एक और जो मेन पहलू है, जो मेडिकल साइंस ने भी प्रूफ किया है, और जितने भी रिसर्च सेंटर्स हैं बाहर मुल्कों में, उन्होंने भी प्रूफ किया कि इसमें जो इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी बड़ा इसमें अल्लाह ताला ने असर रखा है। तो वो जो है ये जो इम्यून सिस्टम का जो असर लेने के लिए और असर हासिल करने के लिए आपको क्या एहतियात करनी चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि जो है सुनने वाले जो है उससे फ़ायदा ले सकें। पहला एहतियात ये है कि आपने सना मक्की का कावा बनाने के लिए पहले पानी को आपने उबालना है 10 मिनट। जब पानी बिल्कुल 10 मिनट फुल बॉयल हो जाए, फिर आप चूल्हा बंद करके पानी को 20 मिनट तक ठंडा करने का है, या आधा घंटे तक। तो सर के ऊपर जो इसका एक कसाफत का एक तह जम जाता है, जो सफ़ेद कलर नजर आता है या ग्रे कलर का एक तह नजर आता है, जो मुख्तलिफ किस्म के नमकियात या कसाफतें जो पानी में होती हैं, वो सर पे और उसके पानी के तह में जम जाती हैं। तो सर वाला पानी आपने फेंकना है
बीच वाला पानी लेना है और नीचे वाला तह वाला पानी वो भी आपने फेंकना है। ठीक है। तो आपके पास एक साफ पानी, फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने एहतियातन उसका सर वाला पानी निकालना है, फेंकना है, और नीचे वाला पानी जो बाकी रह जाता है उसको आपने ज़ाया करना है। ठीक है। बीच वाला जो पानी आपने लेना है उसको दोबारा दूसरे साफ बर्तन में डाल के आपने उसको 10 मिनट फिर उबालना है। फिर आपने एक एहतियात जो बेसिक एहतियात है कि आपने सना मक्खी के पत्तों के जो साथ डंडियां लगी होती है वो आपने कैंची से काटनी है। कोई डंडी आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि वो डंडी में उसका जो है डायरिया का जो अंसर है, वो हकीम लोग बोलते हैं वो डंडियों में ज्यादा है। सिर्फ ग्रीन वाला जो हिस्सा है वो आपने उबालना है, और इतना उबालना है कि पानी का रंग जो है पीला हो जाए या सरसों के तेल की तरह हो जाए, ट्रांसपेरेंट। ज्यादा तेज ना हो, गाढ़ा ना हो, काला ना हो। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको कता करना चाहूंगा। जनाब, आप ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो पीने का जो पानी है इसमें कसापतें हैं, तो बेहतर ये है कि आप जिनके घर में फिल्टर है, फिल्टर से पानी लिया जाए, उसको उबाला जाए। उबालने के बाद उसमें जो कैल्शियम की डिपॉजिट या जो दूसरी गंध है जो ऊपरी तह और निचली सतह में है, उसको एक तरफ रख के बीच का साफ पानी लिया जाए, उसको साफ बर्तन में चाय जोश में डाला जाए, और दोबारा उसको ठंडा करने के बाद दोबारा उबालने के लिए रखा जाए। और कहवे कुछ इस तरह हम बनाते हैं कहवा को, उसी तरह थोड़ी मिकदार में डंडिया काट के कैंची से सिर्फ पत्ती जो है थोड़े मिकदार में डाल के उसको उस वक्त तक बॉयल करते रहे जब तक उसकी रंगत तब्दील न हो। रंगत तब्दील हो के जब वो कहवा बन जाता है, आप चाय जोश को उतारते हैं, कहवे को कप में डालते हैं। अब आगे बताइए कि पीना कैसे है। अच्छा, जब आप कप में डालते हैं तो नीम गर्म हालत में उसमें आपने हस्बे जायका शहद, असली शहद यानी 1 टीस्पून आपने एक कप में डालना है। अगर किसी को शुगर की बीमारी हो और वो उसको परहेज हो हनी से, मीठे से, तो वो अगर कुछ कतरे भी डाल दे तो ये कुछ, क्योंकि इसका जो केमिकल कंपोजिशन है सिर्फ ये जायके के लिए नहीं है। शहद का जो असर है वो खांसी पे काफी मुअस्सर है तिब में, तो उसके लिए ये जो है ये इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए ये कहवा इतना तलख नहीं होता कि आप उसको बगैर शहद की पी न सकते, लेकिन शहद का अपना एक बड़ा मुनासिब है जी, लेकिन शहद का अपना एक असर है। तो जो लोग ज़ियाबेतिस की मरीज हो वो थोड़े मिकदार में लेकिन जरूर डाले, ताकि उसका जो केमिकल असर है वो दुगना हो जाता है और वो बेहतरीन है। तो जनाब, जिनको ज़ियाबेतिस नहीं है वो एक चाय का चम्मच शहद मिला सकते हैं कप कहवे में, और जिनको है वो थोड़े मिकदार में बतौर सवाब और उसके अच्छे असरात के लिए डाल सकते हैं। अच्छा जनाब, शहद हमने मिला दिया, उसके बाद अभी एक बहुत जरूरी बात है कि फिर भी अगर किसी को लूज मोशन या डायरिया शुरू हो जाए 1 कप पीने से, तो उनको डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। उनको दूसरा कप जो है 8 या 10 घंटे के बाद पीना चाहिए, लेकिन 1 कप जो है 2 या 3 घंटे के टाइमिंग में उसको पीना है। एक उसमें सिप लेनी है, या 1 घूंट लेके फिर 15-20 मिनट के बाद दूसरा घूंट, फिर 15-20 मिनट के बाद तीसरा घूंट, इस तरह जो है वक्फे के साथ 2-3 घंटे के वक्फे के साथ 1 कप उसको वो डोज उसने कंप्लीट करनी है। अच्छा, इसका ये फायदा होगा कि उससे जो पेट की खराबी वाक़या होती है उससे बंदा बच जाएगा और उसके मज़बूत असरात आएंगे। लेकिन जनाब ये बताइएगा, ये मैं आपको अपने तजुर्बे के हिसाब से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो दोस्तों को, क्योंकि जिन दोस्तों को, रिश्तेदारों को पता चला कि हमें इस तरह एक्सपीरियंस हुआ सनामकी का, अच्छा, और हमें जो है अल्लाह ताला ने रिकवर करवा लिया, और बिल्कुल हमें तो क्लियर कट जो है हमें पता चला कि सनामकी के जो कावे से हमें अल्लाह ताला ने शिफा। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि एक बंदे को अगर सनामकी की कवे से पेट की खराबी की या डायरिया की कोई शिकायत नहीं हुई है तो दैट्स गुड एनफ, लेकिन कितने दिन और कितने कप पीने हैं? जैसे आप नीले और आपको तकलीफ नहीं हुई, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन 6 कप, यानी रोजाना 2 कप और 3 दिन तक, तो 6 कप हो जाते हैं। 2 कप 3 दिन 6 कप पीने से मुकम्मल तौर पर रिकवरी हो जाती है। और 2 कप
उन लोगों को भी पीनी चाहिए अगर उनको डायरिया हो, लेकिन पहले कप के बाद 8 से 10 घंटे वक्फा देके फिर उनको एक कप तकरीबन 2 घंटे में खत्म करना चाहिए। ऐसी बात आप कर रहे हैं ना? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों को जब डायरिया की शिकायत हुई तो मैंने उनको बोला कि आपने दूसरा कप इस तरह लेना है। जब दूसरा कप उन्होंने इसी तरीके से लिया, 2 से 2.5 घंटे के में कंज्यूम किया पूरा कप, तो फिर उनसे जब मैंने फीडबैक लिया तो उन्होंने बताया कि नहीं, अभी हमें डायरिया नहीं हुआ, हमारा जो है पेट नॉर्मल है। तो फिर तीसरा कप। जी अच्छा जनाब, और कोई जरूरी बात तो नहीं रह रही है ना? नहीं, बस तकरीबन ये तो मेरे ख्याल में जरूरी बातें जो थी आपने मुझसे ज्यादा एक्सप्लेन कर दी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो एहतियात में और बात करना चाहता हूँ कि ये जो वबा है ये आम वबा नहीं है, इसको मजाक न समझे, इसमें हकीकत है। और ये किसी को आप इल्जाम भी नहीं दे सकते कि मुझे किससे ट्रांसफर हुआ। ये अल्लाह ताला का जो है अजाब है। अल्लाह ताला हमें सबको बचाए और हिफ्ज़ व अमान में रखे। किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी हिफाजत इस हद तक करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं और जो SOPs हैं वो अभी इस्टेब्लिश नहीं हुए। मेडिकल साइंस ने इसके ट्रीटमेंट्स और इसके जो एहतियाती तदाबीर हैं या एक्सटेंडेड इलाज है या एक्सटेंडेड दवाई अभी तक इसकी डिस्कवर नहीं हुई। तो वो चीज़ जब तक इस्टेब्लिश ना हो, सिर्फ एहतियात ये है कि इसकी जो वायरस की जो इनहेलेशन है वो कम से कम हो। मिसाल ऐसा है कि एक आदमी जो है जहर थोड़ा सा लेता है तो सिर्फ मुंह का जायका खराब होता है, अगर ज्यादा लेता है तो उसको उल्टियां होती है, डायरिया होता है, और अगर चून उसका निकल लेता है या बड़ी ज्यादा मिकदार में लेता है तो फौरन उसको मार देता है। ये सेम ऐसे ही हो रहा है लोगों के साथ, क्योंकि बड़े अच्छे सेहतमंद स्पोर्ट्समैन, अच्छे सेहतमंद डॉक्टर जो है 3-3, 4-4 दिन में बेचारे शहीद हो गए। तो जनाब बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की कि नया मामला है और इंतहाई एहतियात की जरूरत है। मैं अपने सुनने वालों और देखने वालों, हमने एक नीयती से और मस्बत सोच के साथ आपको एक मोतबर शख्सियत से बात की जो खुद भी और उनकी मिसेज भी और उनके 2 बच्चे बीमार हुए थे और सेहतमंद हो गए। तो सदक़े जारिया के तौर पे ये गुफ्तगू हमने आपके लिए रिकॉर्ड की, और इसके अलावा आप इसके मजीद क्या वजाहत करेंगे? ये है कि एहतियात बहुत ज़रूरी है, और चूँकि दोस्तों को इनसे फाका हुआ है तो आप भी खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल है तो उससे आप इस्तेफादा उठा सकते हैं। अमीनुर रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी दुआएं है कि आप समेत तमाम इंसानियत हर किस्म की वबा और मुसीबतों से अल्लाह तबारक व तआला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वक्त देने का अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर दे। इतनी इम्पोर्टेंट बात आपने अपनी वसातत से मेरे सुनने वालों को, मेरे हमवतनों को और मुसलमान भाइयों को आपने पहुंचा दी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और मेरा जो है जितना भी मेरी जो मालूमात है ये मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है नेक नियती की बिना पे किए हैं। मैं किसी जो है चीज़ पे ऑब्जेक्शन या किसी चीज़ के फेवर में बात नहीं करना चाहता हूँ। मेरा अपना सिर्फ जो एक अपना एक्सपीरियंस है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अल्लाह ताला ने मुझे शिफा दी। मेरे दोस्तों को, मेरे अजीज़ों को, मेरे यारों को जिन के साथ मैंने शेयर किया और एहतियाती तदाबीर बताई, अल्लाह ताला ने सबको शिफा दी। कोई किसी को भी नेगेटिव असर नहीं हुआ, सब पॉजिटिव असर हुआ। इसलिए मैं बड़ा मुतमिद हूँ और बड़ा जो है इखलास के साथ मैंने आपके साथ ये चीज़ें शेयर की। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे आपके साथ, और हमें इस आफत से, मुसीबत से हमारी जो है अल्लाह ताला जो है हमें पनाह दे दे। बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी। मोहतरम सामीन और नाजरीन, आपने अमीनुर रहमान साहब की गुफ्तगू सुन ली। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी पहलू होगी जिस पे हमने बात नहीं की हो, और हद्दुल इम्कान सादा ज़ुबान में हमने कोशिश की कि इस बीमारी से मुतालिक आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दे। अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जान के मैं हलफन ये बात कहता हूँ कि इस ब्रॉडकास्ट का, इस प्रोग्राम का मकसद कतन ये नहीं है कि हम खुदा न खास्ता लोगों को डरा रहे हैं या किसी ख़ास जड़ी बूटी पे या किसी ख़ास तरीक़े
کار پہ ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے ہم اسے اپنا انسانی، اخلاقی اور قانونی فریضہ سمجھتے تھے کہ ایک گھر کے اندر 4 لوگ بیوقت بیمار ہو کے کس وجہ سے اور کتنی جلدی تندرست ہو گئے ہیں، ہم اس کو مفاد عامہ کے لیے، انسانیت کے لیے اس کو عام کر دیں۔ اگر ہماری باتوں میں آپ کو سچائی لگی ہے، اگر ہماری باتوں میں آپ کو خلوص نظر آیا ہے اور آپ سمجھ گئے ہیں کہ واقعی ہم نے جو کہا وہ درست اور ٹھیک ہے، تو میری طرح آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس آواز کو، اس پروگرام کو، اس بات چیت کو آپ دنیا کے کونے کونے میں پھیلائے، اور جہاں جہاں اس وبا کے مریض پڑے ہیں تو ان کو اللہ شفا عطا کرے، اور جہاں ابھی نہیں ہے اللہ ان کو خیر و عافیت میں رکھے۔ لیکن اگر اس وبا کا نزول کہیں پہ ہو جاتا ہے، کوئی اس سے متاثر ہوتا ہے، تو اس سے قبل ہی ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ ایک جہاد ہے اور اس جہاد میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اگر آپ متفق ہیں، آپ مطمئن ہیں جو کچھ آپ نے سنا، جو کچھ ہم نے کہا، تو آپ انسانیت کے لیے اور اللہ رسول کے واسطے اس گفتگو کو جہاں تک ہو سکتے ہیں عام کریں، تاکہ انسانیت کی بھلائی ہو۔ اور اب آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔